हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स पेडागोजी सेशन। ये हमारी थर्ड वीडियो है मैथ्स पेडागोजी पे। अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। थर्ड वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल इन टीचिंग मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए, एनहांस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, इट हिंडर्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, it discourage creativity. Option number D, it has no impact on learning. Right answer is it enhance abstract thinking. Question number 2, according to Piaget stages of cognitive development, at which stage do children start understanding conservation of quantity? Option A, sensory motor stage. Option B, pre-operational stage. Option C, concrete operational stage. Option D, formal operational stage. Right answer is concrete optional stage, that is C. Question number 3, what is the purpose of formative assessment in mathematics education? Option number A, to assign grades. Option number B, to measure final achievements. Option number C, to provide ongoing feedback for improvement. Option number D, to compare students with each other. तो राइट आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू? ऑप्शन ए, रिमूविंग सपोर्ट ग्रेजुअली। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग स्ट्रगलिंग स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी, आइसोलेटिंग स्टूडेंट विद ईच अदर। राइट आंसर होगा स्टूडेंट को सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड कराना सीखने में, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन इन अ मैथ्स क्लासरूम? ऑप्शन नंबर ए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम? ऑप्शन नंबर बी, solve for x in this equation. Question number C, explain your reasoning for the solution. Option number D, how does math relate to real world situation? तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है वो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है मैथ्स क्लासरूम में, क्योंकि इसके बाद सबको ही अपना आंसर सोल्व करना होता है, इसके बाद कोई क्यूरी नहीं बचती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, what does Vygotsky zone of proximal development ZPD represent in mathematics learning? Right answer option number A होगा material that is too easy to students, material that is too difficult for student. Option C, the range of task a student can perform with assistance. Option number D, a fixed set of skill for all students. तो right answer होगा option number C, the range of task a student can perform with assistance. Question number 7, which teaching strategy promotes mathematical problem solving skills? Option number A, memorization of formula. Option number B, providing step by step solution. Option number C, discouraging question. Option number D, encouraging critical thinking. तो right answer होगा option number D, encouraging critical thinking. Question number 8, what is the primary purpose of using manipulatives in mathematics teaching? Option number A, to replace abstract thinking. Option number B, to make lesson more entertaining. Option number C, to help students visualize and understand concept. Option number D, to reduce teacher workload. तो जो right answer होगा वो C, to help student visualize and understand concept. Question number 9, how can a teacher differentiate instruction in a maths classroom? Option number A, assign the same tasks to all students. Option number B, provide additional support for struggling student. Option number C, ignore individual learning needs. Option number D, use only one teaching method. तो ऑप्शन बी इज द राइट, कि वो बच्चे को जो है एडिशनल सपोर्ट देगा, जो एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होगा तो टीचर को उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द टर्म मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग? ऑप्शन नंबर ए, मेमोराइजिंग फैक्ट. ऑप्शन नंबर बी,
thinking about one's own thinking. Option C, avoiding challenging problem. Option D, focusing only on procedure. तो राइट आंसर होगा बी, थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इज इफेक्टिव फॉर टीचिंग ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा इनमें से। रोट मेमोराइजेशन ज्योमेट्री के लिए अच्छा नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, अवॉइडिंग विजुअल एड्स और स्ट्रिक्ट लेक्चर फॉर्मेट। दो बी आंसर सबसे परफेक्ट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ जो हमें ज्योमेट्री को समझने के लिए करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथ इंस्ट्रक्शन व्हाट डज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन। तो मैथ्स इंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, टीचिंग द सेम कंटेंट टू ऑल स्टूडेंट, सेम जो कंटेंट है वो सभी स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, नए इंस्ट्रक्शन को अडेप्ट करना चाहिए बच्चों के डाइवर्स लर्नर्स की वजह से, सब बच्चों की नीड्स अलग होती है इस वजह से। ऑप्शन नंबर सी, इग्नोरिंग इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, तो सबका अलग जो इंडिविजुअल स्टाइल होता है लर्निंग उसको इग्नोर करना चाहिए। यूजिंग ए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, सबके लिए एक ही अप्रोच यूज़ करनी चाहिए कि ये सबको समझ आ जाएगा। तो जो बी आंसर है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो राइट होगा। अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर, बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों के लिए जो है अलग अलग इंस्ट्रक्शन को अडेप्ट करना चाहिए, मीट करना चाहिए बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या रोल होता है मैथ्स क्लासरूम में। ऑप्शन ए, आइसोलेटिंग स्टूडेंट फ्रॉम ईच अदर, encouraging competition among student, C, promoting collaboration and shared learning, और ऑप्शन डी, फोकसिंग ओनली ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट। तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसका क्लासरूम में क्या रोल होता है, तो राइट आंसर होगा बी, प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड लर्निंग, बच्चों को सिखाना कि साथ में कैसे काम किया जाता है और साथ में कैसे सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, why it is important to integrate real world application in math instruction. Option A, to make lessons more challenging, to emphasize memorization, to demonstrate the relevance of maths in everyday life, और टू डिस्करेज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सोचने समझने की पावर को डिस्करेज करना होता है। या फिर ऑप्शन ए, टू मेक लेसन्स मोर चैलेंजिंग, जो चैप्टर्स होते हैं लेसन्स होते हैं उनको और ज़्यादा मुश्किल या चैलेंजिंग बनाने के लिए। टू एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए। या फिर सी, टू डिमोन्स्ट्रेट द रेलेवेंस ऑफ मैथ्स इन एवरीडे लाइफ, मैथ्स को एवरीडे लाइफ जो दैनिक दिनचर्या होती है उससे जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, what does the term mathematical modeling refers to the mathematics education. Option A, solely focus on abstract concept. Option B, applying mathematical concept to real world situation. Option C, ignoring practical application. D, memorizing formulas without understanding. तो B पॉजिटिव आंसर है, applying mathematical concepts to real world situations. Question number 16, हाउ कैन ए टीचर इनक्रेज ए ग्रोथ माइंडसेट इन मैथ। एक टीचर जो होता है वो कैसे उत्साहित कर सकता है एक बढ़ते हुए दिमाग को मैथ्स में। ऑप्शन ए, बाय प्रेजिंग ओनली नेचुरल टैलेंट, उसको नेचुरल जो टैलेंट है उसका जो कि वो खुद ही मैथ में अच्छा उसको प्रेज करके। ऑप्शन बी, एम्फेसाइजिंग दिस इंटेलिजेंस इज फिक्स। ऑप्शन सी, इनकरेजिंग प्रिजर्वेंस एंड एफर्ट जो है, और ऑप्शन डी होगा डिस्करेजिंग मिस्टेक। तो राइट आंसर इज सी, encouraging perseverance and effort. Question number 17, what is the purpose of incorporating technology in mathematics instruction. Option A, to replace traditional teaching methods, to make lessons less engaging. Option C, to enhance learning experience and provide new tools. Option D, टू आइसोलेट स्टूडेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइड न्यू टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन ए टीचर assesses students
अंडरस्टैंडिंग इन अ फॉर्मेटिव वे ड्यूरिंग अ मैथ्स लेसन। तो जो टीचर होता है वो कैसे स्टूडेंट को एक्सेस कर सकता है, एक फॉर्मेटिव वे में मैथ्स लेसन के दौरान कैसे समझ सकता है उसको। ऑप्शन ए ओनली थ्रो समेटिव टेस्ट, सिर्फ टेस्ट लेके किसी बच्चे की परफॉर्मेंस या उसके समझा जा सकता है। ऑप्शन बी थ्रो ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चन, जो भी पूरे साल के दौरान या लेक्चर के दौरान जो है ऑब्जर्व करता है टीचर और क्वेश्चनिंग करता है उससे। बाय असाइनिंग ग्रेड्स ओनली एट द एंड ऑफ लेसन के लास्ट में जो ग्रेड्स बच्चों को दी जाती है उसके बेस पे। या ऑप्शन डी इग्नोरिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस कोई बच्चा कर रहा है उसे इग्नोर करके। तो राइट आंसर बी होगा, पूरे लेक्चर के दौरान ऑब्जर्व करके कि कौन बच्चा अच्छे से कर रहा है और क्वेश्चनिंग करके बीच में कि कौन उसका बेहतर आंसर दे रहा है। एक टीचर समझ सकता है एक बच्चे को असेसमेंट के लिए कि कौन बेहतर मार्क्स गेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग ओपन एंडेड मैथ प्रॉब्लम इन क्लासरूम। लिमिट, ऑप्शन ए लिमिटिंग क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी अवॉइडिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट, ऑप्शन सी फोकसिंग सोलोली ऑन मेमोराइजेशन। तो राइट आंसर होगा इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट आंसर डी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए मैथ्स टीचर टू एस्टेब्लिश ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। एक मैथ्स टीचर के लिए क्लासरूम में एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना क्यों जरूरी होता है। टू डिस्करेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ताकि बच्चे पढ़ने में भाग ना लें और मतलब उनको डिस्करेज करना। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है तो कैंसिल हो जाएगा। टू क्रिएट ए सपोर्टिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग, बच्चों के लिए एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना सीखने के लिए, ताकि वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को पूछ पाए टीचर से और समझ पाए। टू एम्फेसाइज कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट, बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना लेके आने के लिए। तो राइट आंसर इसका बी होगा, टू क्रिएट ए सपोर्टिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ऑप्शन ए मैथमेटिक्स को पढ़ाने का सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए मेमोराइजेशन, नो। ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ऑप्शन सी रिपीटेशन और ऑप्शन डी रोट लर्निंग रट्टाफिकेशन। तो जो बी आंसर राइट होगा अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना और उसे अप्लाई करना मैथ्स का पहला गोल होना चाहिए पढ़ाने में समझाने में टीचर का। विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट। तो कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को लेके आने के लिए। ऑप्शन ए लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन, ऑप्शन डी इंडिविजुअल सीट वर्क। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग सबसे बेस्ट है, जहाँ पे सब एक दूसरे से पूछ के शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन ए टीचर इनकरेज ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरी, ऑप्शन बी emphasizing mistakes as failure, ऑप्शन सी लिंकिंग मैथ्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस, ऑप्शन डी डिस्करेजिंग क्वेश्चंस। तो राइट आंसर सी होगा लिंकिंग मैथ्स टू रियल लाइफ सिचुएशन। एक टीचर जो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आ सकता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट में अगर वो मैथ्स की प्रॉब्लम को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग मैनिपुलेटिव in teaching mathematics. Question number option number A adds complexity, option B enhance understanding as a visualization, option C reduce engagement और option D creates confusion। तो A C D वैसे ही नेगेटिव सेंस है, तो B इज़ द राइट आंसर एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो जो एक टीचर होता है वो मैनिपुलेटिव्स का यूज़ करता है ताकि अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से समझा सके बच्चों को और विजुअलाइज करा सके। तो B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच असेसमेंट मेथड इज सुटेबल फॉर इवेलुएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ऑप्शन बी रोट मेमोराइजेशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, ऑप्शन डी जो होगा स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट बच्चों को देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन रेफर टू। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड, ऑप्शन बी टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड्स, ऑप्शन सी मेमोराइजेशन टेक्निक्स,
ऑप्शन डी अवॉइडिंग वेरी लर्निंग स्टाइल्स। तो बी इज द राइट आंसर, टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड। उसी तरह के इंस्ट्रक्शन देने चाहिए जैसी बच्चों की या अलग अलग बच्चों की जो नीड होती है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट ड्यूरिंग मैथमेटिक्स लर्निंग। तो बच्चों को जो फीडबैक होती है वो क्यों प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स सीखते टाइम, ताकि उनकी एंजाइटी इंक्रीज हो, मतलब वो ज़्यादा डर जाए। हिंडर्स प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस जो होती है उसको छुपाने के लिए। ऑप्शन सी रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर एंड करेक्ट्स, मतलब उन्हें उत्साहित करने के लिए पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, और जो करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको गलतफहमी उसको ठीक करने के लिए। ऑप्शन डी प्रमोट कंपटीशन। तो सी इज़ द राइट आंसर, जो उन्हें उत्साहित करने के लिए पॉजिटिव बिहेवियर के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच स्टेज ऑफ पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डू चिल्ड्रन डेवलप कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। ऑप्शन ए हिंड्रेंस टू लर्निंग, ऑप्शन बी इनहेंसेस एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी obsolete in the modern classroom, option D promote rote memorization। तो राइट आंसर इज बी enhance engagement and understanding। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ कैन a teacher promote a growth mindset in mathematics। ऑप्शन ए praising only innate ability, ऑप्शन बी focusing on fixed ability, ऑप्शन सी encouraging effort and perseverance, ऑप्शन डी discouraging challenge। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इनकरेजिंग एफर्ट्स एंड प्रिजर्वेंस। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।